Hello everyone, I am Miss Ranjit Kaur, Associate Professor in Commerce in Guru Nanak National College, Doraha. Today we are going to talk about topic labor turnover. As we all know, there are three main elements of cost. Those are material cost, labor cost, and overheads. And labor cost is the second major element of cost. Proper control and accounting for labor cost is one of the most important problems of a business enterprise. Labor is the most perishable commodity and it should be effectively utilized because if labor once lost, it cannot be recouped and is bound to increase the cost of production. So, retaining the labor is the most important element, most important work of any business enterprise. Now, we will discuss the topic in detail. Now, there are two types of labor. One is direct labor and another is indirect labor. Direct labor is that labor which is directly engaged in production of goods and services and which can be conveniently allocated to the job process or commodity unit. That is, जो labor डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंगेज्ड है या जो लेबर डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर और उनको जो कंपनसेशन पे की जाती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, any tailor who is making garments in the industry, carpenter in case of furniture, those are direct labor. Now second one is indirect labor. Indirect labor is that labor which is not directly engaged in production of goods but which indirectly helps the direct labor engaged in production. That is, जो लेबर डायरेक्ट लेबर की हेल्प करती है उनके काम करने में और वो डायरेक्टली कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे बट दे आर हेल्पिंग द डायरेक्ट लेबर इन प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल, जो इंडस्ट्री में स्वीपर्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं, क्लीनर्स हैं, पियोन्स हैं, ऑल दीज पर्सन्स indirectly they help the direct labor in production, so that is called indirect labor, and whatever they are getting, that is called indirect labor cost. So now we will discuss what is labor turnover. So labor turnover denotes the percentage change in labor force of an organization. That is, it is the rate at which employees leave and are replaced within an organization over a specific period. कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच कितने एम्प्लॉयज़ किस रेट पे उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह पे नए आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेबर टर्नओवर. सो स्पेसिफिक पीरियड जो है वो एक महीना भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने कितने टाइम का रेट कैलकुलेट करना है. सो जो ज़्यादा लेबर टर्नओवर है उसका मतलब है कि आपकी लेबर स्टेबल नहीं है, आपकी लेबर टाइम टू टाइम जॉब छोड़ के जा रही है और उनकी जगह पे आपको नई लेबर एम्प्लॉय करनी पड़ रही है. सो हायर द लेबर टर्नओवर डिनोट्स दैट लेबर इज़ नॉट स्टेबल and there are frequent changes in labor force and it is not desirable. तो higher labor turnover rate जो है that is not good sign for the organization because it affects the reputation of the organization that labor is not preferring to work in that particular organization. So how we can calculate labor turnover? Labor turnover can be calculated by different methods. First one is according to separation method, that is number of employees left during the period divided by average number of employees during the period into 100. So इस मेथड के अकॉर्डिंगली हमने जो लेबर छोड़ के जा रही है सिर्फ उसको कंसिडर करा है. सो दैट विल बी डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग ए पीरियड. जितने टाइम पीरियड की आप लेबर टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हो उसका स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम पीरियड के और उस टाइम पीरियड के एंड में कितने एम्प्लॉयज़ के, उसकी एवरेज निकाल के उससे डिवाइड करना है. सो इस मेथड के अकॉर्डिंगली दिस मेथड में हम सरप्लस लेबर को इंक्लूड नहीं कर रहे. सो दिस डेफिनेशन विल गिव इनकरेक्ट रिजल्ट व्हेन सरप्लस वर्कर्स आर डिस्चार्ज बिकॉज लेबर टर्नओवर विल बी हाई. सो दिस मेथड इज़ नॉट अ प्रेफरेबल मेथड. Second one is labor turnover according to flux method. That is equal to number of additions plus separations during a period divided by average number of employees during a period.
into 100. So this definition will not be applicable when organization is expanding, because in that case many new workers will be engaged, many new workers will be employed, and whenever the organization is expanding, then there will be no separation. Workers may not leave the organization. So in that case also labor turnover will be high. So this method is also not preferable. Third one is labor turnover according to replacement method. That is, number of workers replaced during a period divided by average number of workers during the period into 100. So this definition considers surplus labor. That is, it will give you a correct result, because when the factory is expanding, new additions are not to be taken, because all additions are not to be taken, only workers replaced due to leavers are to be taken. So सिर्फ हमने जो रिप्लेस करे हैं वर्कर, जो छोड़ के गए हैं, उनकी जगह पे जो नए रखे हैं, सिर्फ उनको कंसिडर करना है. So this definition can be taken the most reliable definition out of all the definitions given below. Now what are the causes of labor turnover? लेबर टर्नओवर ज़्यादा होने के रीजंस क्या हैं? तो लेबर टर्नओवर ज़्यादा होने के रीजंस कुछ अवॉइडेबल हैं, कुछ अनअवॉइडेबल हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हैं जो वर्कर्स के होते हैं. तो उनके अकॉर्डिंगली फर्स्ट है पर्सनल कॉजेज़, कि वर्कर्स अपनी पर्सनल रीजंस के कारण जॉब को छोड़ के जा रहे हैं. वो रीजंस क्या हो सकते हैं? फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है. कोई वर्कर है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो ही इज़ नाउ परमानेंटली इनकेपेबल टू डू द वर्क, तो जॉब छोड़ेगा. जॉब पसंद नहीं है, जो जगह पसंद नहीं है, वो जगह आपके घर से बहुत दूर है तो आपको कन्वीनियंट नहीं है वहाँ पे पहुँचना. वुमेन वर्कर्स में लीव आफ्टर मैरिज. समटाइम्स फीमेल वर्कर्स को मैरिज के बाद जॉब छोड़नी पड़ती है. दे आर मूविंग इन सम अदर प्लेस. वर्कर्स फाइंडिंग बेटर जॉब्स एट सम अदर प्लेस. वर्कर्स में लीव बिकॉज ऑफ देयर रूमिंग नेचर. कईयों की आदत होती है कि ज़्यादा देर टिक के एक जगह काम नहीं करना, एक जॉब छोड़ी दूसरी छोड़ी तीसरी ली. तो दिस में ऑल्सो बी अ रीज़न. और लास्ट वन इज़ रिटायरमेंट. तो आपको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी. और ड्यू टू डेथ ऑफ वर्कर इन सर्विस, that place will be vacated. That means that these are some personal reasons. Apart from this there are many other reasons also, but these are basic reasons जिसके कारण वर्कर जॉब छोड़ के जा सकता है. सेकेंड वन इज अनअवॉइडेबल कॉजेज. अनअवॉइडेबल कॉजेज क्या है? कि वर्कर्स में बी डिस्चार्ज ड्यू टू इनएफिशिएंसी. तो वर्कर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा तो ऑर्गेनाइजेशन उसको डिस्चार्ज कर सकती है. वर्कर्स में बी डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूड और लॉन्ग एब्सेंस. ज़्यादा देर लंबा समय एब्सेंट रहने के कारण भी जॉब से आपको टर्मिनेट किया जा सकता है. और वर्कर्स में बी डिस्चार्ज और रिट्रेंच ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्क. तो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड कम हो गया है, काम कम हो गया है, आपकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वर्कर्स ज़्यादा हैं, सरप्लस हैं, तो सरप्लस वर्कर्स में बी डिस्चार्ज ड्यू टू लेस वर्क. नेक्स्ट है अवॉइडेबल कॉजेज़. अवॉइडेबल कॉजेज़ वो कॉजेज़ हैं जिसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उन पे थोड़ा काम करके उन कॉजेज़ को थोड़ा रिड्यूस कर सकती है. तो ये कॉजेज़ वो हैं जिनके कारण वर्कर्स जॉब छोड़ के जा रहे हैं. दैट इज़ कि उनको वेजेस कम मिल रही हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ पे रॉन्ग प्लेसमेंट है, जो जैसा काम उनको चाहिए था वैसा काम नहीं मिला, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, काम करने के आवर्स जो हैं वर्किंग आवर्स वो बहुत ज़्यादा हैं, प्रमोशन पॉलिसीज़ वर्कर्स को पसंद नहीं आ रही, और अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट का एटीट्यूड जो वर्कर के साथ है वो ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं कर रही मैनेजमेंट. तो ये रीज़न्स हैं जिसके कारण मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन के कारण वर्कर्स उस जॉब को छोड़ रहे हैं. सो अगर वर्कर्स टाइम टू टाइम जॉब छोड़ के जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हेल्दी साइन नहीं है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हायर द लेबर टर्नओवर इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अगर लेबर टाइम टू टाइम जॉब छोड़ के जा रही है तो उसका इफ़ेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा? फर्स्ट वन इज़ इंटरप्शन इन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन.
जब लेबर काम बीच में छोड़ के जाएगी तो जो एक प्रोडक्शन का फ्लो बना होता है कि आपने टारगेट पूरा करना है, काम को कंप्लीट करना है, तो उसमें इंटरप्शन आ जाती है, वो रुक जाता है। नए वर्कर जब अपॉइंट होंगे तो उनकी एफिशिएंसी कम होती है काम करने की, तो उसके कारण वो स्लो काम करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे, वियर एंड टीयर ज़्यादा होगी इंस्ट्रूमेंट्स की, टूल्स की, तो उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। नए वर्कर्स को सिलेक्ट करना, उनकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और फिर उनको ट्रेनिंग देना, दैट इज़ अ कॉस्टली अफेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। More depreciation of tools and machinery used by new inexperienced workers। तो वर्कर्स अगर नए हैं तो उनको वो टूल, मशीनरी और टूल्स को कैसे यूज़ करना है वो ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ अगर नहीं कर पा रहे तो उनकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी और वर्कर्स आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। सो नए वर्कर्स हैं, काम करना नहीं आता, मशीनरी नहीं है, मशीनरी चलानी नहीं आ रही, टूल्स यूज़ करने नहीं आ रहे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब अगर लेबर टाइम टू टाइम चेंज हो रही है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन पे खर्चा बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो पहली है प्रिवेंटिव कॉस्ट। द एम ऑफ दीज कॉस्ट इज टू कीप द वर्कर्स सेटिस्फाइड सो दैट दे मे नॉट लीव द फैक्ट्री। अगर ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसे पहले जानते ही हैं कि देयर इज़ अ प्रोवर्ब दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही प्रिवेंट कर लें तो उस पर खर्चा कम हो सकता है, उस पर हम ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट वो है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा खर्चा कर ले तो अपने वर्कर्स को सेटिस्फाई कर सकती है और वो जॉब छोड़ के जाने की नहीं सोचेंगे। तो ये वो खर्चे हैं, जैसे गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी, उनको मेडिकल और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, सब्सिडाइज मील्स, वेलफेयर फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे खर्चे करने से वर्कर वहाँ टिक के काम कर सकते हैं। दूसरी आ जाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। दीज कॉस्ट आर एसोसिएटेड विद रिप्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स। दैट इज़ कि अगर वर्कर जॉब छोड़ ही जा रहे हैं या किसी अनअवॉइडेबल रीज़न के कारण वो जॉब छोड़नी पड़ रही है उनको, तो उसके केस में हमें नए वर्कर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे और उनका खर्चा क्या होगा। दैट इज़ कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ न्यू वर्कर्स। नए वर्कर्स को रखना है, उनके लिए आप एडवर्टाइजमेंट, देन सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर उनकी ट्रेनिंग का सारा खर्चा जो है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आएगा। लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। नए वर्कर्स, एक वर्कर छोड़ के चला गया, उसकी जगह पे नए वर्कर ने थोड़ा टाइम ले लिया आने में, तो उतने टाइम में जितना प्रोडक्शन का लॉस हुआ है और उसके बाद जो वर्कर्स इनएफिशिएंटली नए वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके कारण जो प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ दैट लॉस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। Wastage or excessive spoilage due to mishandling of machines, tools and materials by new workers, and cost of accident because of inexperienced workers। तो वर्कर्स का, अगर नए वर्कर हैं, काम करना नहीं आ रहा, तो जो एक्सीडेंट हो रहा है उसके कारण जो खर्चा हो रहा है वो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा। नाउ द मैटर इज़ दैट हाउ वी कैन रिड्यूस लेबर टर्नओवर। हम कह रहे हैं कि लेबर टर्नओवर अच्छी बात नहीं है, कुछ रीजंस ऐसे हैं, अवॉइडेबल रीजंस हैं, अवॉइडेबल कॉजेज़ हैं जिन पे अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करे तो वो कुछ हद तक अपनी लेबर टर्नओवर का रेट कम कर सकती है। तो वो क्या क्या एफर्ट्स ने जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है? फेयर रेट्स ऑफ पे एंड अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। वर्कर्स जॉब छोड़ के जा रहे हैं कि उनको पे अच्छी नहीं लग रही, उनको अलाउंसेस, बोनस, फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी पे करेगी, अच्छा पे करेगी, अलाउंसेस देगी और बेनिफिट्स देगी, तो लेबर वहाँ टिक के काम कर सकती है। अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, सूटेबल पर्सोनल पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ फेयर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में लगता है वर्कर्स को कि दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्रमोशन की है या पे इंक्रीज़ की है, तो वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। वर्कर्स जो एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनमें
डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है।